Hello everyone, this is Arpit Jain here and I again welcome you on Civil Learners. So yesterday we talked about monetary policy. हमने monetary policy के बारे में बात कर रहे थे और हमने M1 जो कि रिजर्व मनी है, जो बेस मनी है हमारा, हमने उसके बारे में पढ़ लिया था. एंड मैंने बताया था कि हमारे यहाँ जितनी भी डिपॉजिट्स होती है, इट मे बी टर्म्ड एज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स होती है. जैसे हम बात करते हैं कि कुछ एफडीज़ होती है, फिक्स डिपॉजिट्स होती है, कुछ डिमांड डिपॉजिट्स होती है, कुछ हम बात करते हैं टीडी टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट की. ऐसे बहुत सारे डिपॉजिट्स होती है हमारे अकाउंट में जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा पार्ट होता है. ठीक है, तो जैसे हमने M1 में पढ़ा था, जो रिजर्व मनी में जो मनी इन सर्कुलेशन है, उसके बाद जो मनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो कि बैंकर्स की होती है, और जो अदर डिपॉजिट RBI के साथ होती है, जो कि कोई सी भी मनी हो सकती है, मे बी वो फॉरेन अकाउंट की मनी हो, फॉरेन अकाउंट्स या फिर फॉरेन एक्सचेंज जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में होता है, उसे भी अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI में इंक्लूड किया जाता है, जो कि मे बी IMF या वर्ल्ड बैंक के सिक्योरिटीज़ भी हो सकती है. तो अदर डिपॉजिट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती है. आज हम पढ़ते हैं M1 जो कि एक तरीके का नैरो मनी है. अब नैरो मनी हम समझ सकते हैं कि नैरो मनी होती क्या होगी. जब हम बात करते हैं M1 की, जो कि हमारा नैरो मनी है, वो डिसाइड करता है मनी विथ पब्लिक. नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी इन सर्कुलेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट मनी विथ पब्लिक. आपके पास कितना पैसा आपकी जेब में पड़ा हुआ है. मनी इन सर्कुलेशन मतलब आप मार्केट में उस पैसे को कितना घुमा रहे हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट मनी विथ पब्लिक, दैट टोटली टॉक्स अबाउट हाउ मच मनी यू हैव केप्ट इन योर पॉकेट और इन योर लॉकर. दैट इज मनी विथ पब्लिक. एंड द अदर थिंग इज दैट demand deposit with different kinds of banks. And the other thing is the same other deposits with RBI. Money with public means the money which you have kept in your pocket. But when we talk about the demand deposit with banks, so what is demand deposit? Let's understand the demand deposit. Demand deposit is such kind of deposit which has no determined time, which you can use for any purpose, and which we do have a different kinds of bank account like saving or current. So how the demand deposit has been working? The thing is that when you can withdraw money from these bank accounts without a time period, and even though you can also speak there, the interest rate would always be low in compared to fixed deposit. And what is fixed deposit? Which has a predetermined time, which cannot be withdrawn without a particular time, without a time period, a fixed time period. Likewise, if you have deposited this money, a lump sum amount, for 1 year, you cannot withdraw it before 1 year. But when we talk about demand deposit, when we talk about saving deposit, when we talk about the current deposit, you can withdraw anytime whenever you want to purchase something. So that is the difference between demand deposit and fixed deposit. And the fixed deposit is always equal to time deposit. It is also termed as time deposit or term deposit. Okay, so demand deposit includes the saving accounts and current accounts. And whenever we are talking about the M1 policy, which is always a narrow money, and it always includes the money with the bank, which is current account or saving account, because it has no stability, because the things are keep withdrawn. हम उसे बार बार निकालते रहते हैं और सेविंग करते रहते हैं. और हमने इसलिए इसे नैरो मनी कहा है कि जहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत कम होती है. देयर इज नो स्टेबिलिटी विथ एनी अकाउंट. इस टाइम पीरियड में बहुत सारे अकाउंट बंद भी होते हैं तो खुलते भी हैं. ओके, दैट्स व्हाई वी कंसीडर इज एज अ डिमांड डिपॉजिट द नैरो मनी. एंड अदर थिंग इज दैट अदर डिपॉजिट्स विथ RBI, when they are included, it becomes the basic structure of a narrow money.
because the RBI is the one kind of the central bank, is the one kind of loan producing bank for the central bank which can provide money for any kind of scheme or any kind of policy या any kind of scheme to be implemented. कोई भी स्कीम हमें लागू करना है उसके लिए जो पैसा चाहिए, हम हमेशा वर्ल्ड बैंक से जाने से पहले हम आरबीआई के पास जाते हैं। ओके, आरबीआई के पास कुछ रिजर्व्स होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी डायस्पोरास होते हैं वो कुछ ना कुछ रेमिटेंसेस लाते हैं। रेमिटेंसेस मतलब वो जो पैसा कमाते हैं वो यहाँ आके डिपॉजिट करते हैं, वो पैसा जब यहाँ आता है उसे रेमिटेंसेस में इंक्लूड किया जाता है। तो ऐसा कि कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई के पास होता है तो वो इंक्लूड करते हैं हम, और जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो लोन प्रोड्यूसिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो दैट्स व्हाई द M1 इज ऑलवेज अ नैरो मनी बिकॉज इट डू नॉट प्रोड्यूस स्टेबिलिटी एट अ वाइल। एंड आफ्टर दैट when we talk about M2, when we talk about M2, always consider a thing that the M1 would always be included. When we talk about M2, the narrow money would play its important role. वो अपना हमेशा जो उसका रोल है, the important role वो हमेशा प्ले करेगी। और M1 के साथ हम क्या इंक्लूड करेंगे? टाइम डिपॉजिट। बट कौन सी बैंक के साथ? पोस्ट ऑफिस बैंक के साथ। एंड नाउ व्हाई डू वी स्टडी अबाउट द पोस्ट ऑफिस बैंक एंड हाउ इट हैज बीन ओरिजिनेटेड। हम बात करते हैं 1860 से 1850 के बीच में, जब ग्रेट ब्रिटेन में ये पोस्ट ऑफिस बैंक लागू की गई थी। किस लिए लागू की गई थी? कि जब विलेजेस में जब लोग अपने अकाउंट्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं विथ द हाई लेवल बैंकिंग सिस्टम, तो गवर्नमेंट उन्हीं अकाउंट को, उन्हीं बैंक को पोस्ट ऑफिस बैंक के नाम से डिफरेंट काइंड्स ऑफ विलेजेस में उन्हें एस्टैब्लिश करती हैं, जहां भी जिनका अकाउंट मेंटेन करना बहुत इजी होता है। और जो विलेज लेवल पे जब ये अकाउंट मेंटेन की जाते हैं तो उनका प्रोसेस बहुत सिंपल रखना पड़ता है। And when we consider about the post office bank account, it always have a very simple procedure जो कि किसी भी विलेज के किसी भी इंसान को समझ में आ सकता है। क्योंकि आज भी अगर हम ट्रेडिशनल व्यू देखें हमारे भारत में, तो गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अनपढ़ होते हैं, और अगर उनको बैंक का प्रोसीजर समझाने जाएं कि भैया सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट सेविंग डिपॉजिट, व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्स्ड डिपॉजिट, तो उन्हें समझ में नहीं आता है। तो द विलेज लेवल पे जब हम पोस्ट ऑफिस बैंक को खोलते हैं तो उसका सबसे बड़ा रोल यही है कि जो विलेज लेवल पे जितने भी लोग हैं होते हैं उन्हें बैंक का प्रोसीजर समझाना और सिंपल से सिंपल प्रोसीजर में उनके अकाउंट में जितना पैसा होता है सेव करना। क्योंकि विलेज लेवल पे आज भी जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, और हम कहते हैं कि हमारा भारत एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी किसान होते हैं, अधिकतर किसान इस चीज से बहुत अनजान होते हैं। दे आर अननोन टू सच काइंड ऑफ थिंग, देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, सेविंग डिपॉजिट क्या है। तो narrow money plus when we talk about the time deposit with the post office bank, टाइम डिपॉजिट मैंने बताया आपको, टाइम डिपॉजिट एफडीज होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं जो कि किसी समय से पहले आप उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है विलेज लेवल पे सेविंग करने के लिए। नहीं तो अगर ये चीज अगर हम यहाँ अगर सेविंग अकाउंट खोल देते इस जगह, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी हम विलेज लेवल पे प्रोवाइड नहीं कर पाती, और कहीं ना कहीं फिर हम बात करते हैं कि मनी हमारा इकोनॉमी कोलैप्स हो गया, कहीं ना कहीं क्राइसिस कोलैप्स हो गई। क्योंकि जो भी हमारा इकोनॉमी कोलैप्स होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी को पड़ता है तो वो लोअर मिडिल क्लास को होता है। और लोअर मिडिल क्लास इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, द पीजेंट्स ऑफ विलेजेस। और अगर इनका कोलैप्स हो गया तो भारत की इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो जाती है। सो दैट्स व्हाई वी always conclude about the crisis, and always when we think about the migrant people and when we talk about the peasants, वो हमेशा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो M2 is equal to M1 which is a narrow money and the time deposit किसके साथ? पोस्ट ऑफिस बैंक्स के साथ। ओके, सो टॉकिंग अबाउट नाउ M3, what is M3? Now M3 includes the saving deposit जो कि किसके पास है? पोस्ट ऑफिस बैंक के पास। विथ पोस्ट ऑफिस बैंक के साथ।
एंड कंक्लूडिंग अबाउट द सेविंग डिपॉजिट, इट इज वन काइंड ऑफ मनी जो कि हमारे यहाँ पे जितने भी हाथ खर्ची होती है, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्टिलाइजर्स फॉर द विलेज इकोनॉमी, and there are differentiate things, the subsidies and all these things are included in the saving deposit with the post office bank account, because it is required to maintain the agriculture economy. And if it is not provided, because it plays at the first stage role, and when we talk about M2, it plays a second stage role when we talk about M2. And why it's playing second stage role? Because it provides a greater stability to the agricultural economy. And when we talk about M3, which is always a saving deposit with the post office bank account, so it determines to have a great subsidy and to provide the agricultural economy with the lenient things which are needed to grow. So these are the things which is included in the M3. And now talking about M4. When we talk about M4, so M4 includes M3. And what is M3? M1 plus saving deposit with post office bank. Okay? And all other deposit with post office bank. Now it is including the M3, which is always used for the saving bank account, saving deposit with the post office bank, and all other deposit which is included with more other institution, all other deposits like which is needed to grow economy in any way. So the M3, M4 has always to provide the expenditure on day-to-day daily basis. And why it has been included in the monetary policy is just because without a high investment we cannot really proceed well. Without a high investment we cannot proceed well. For the investment we need to focus on the saving account, the current account, your needy, your all the needs which is really needed to provide you with a great economical structure and for a high development. So that is the monetary policy which we have concluded here. And when we are talking about the demand deposit, I should mention you what is demand deposit and how it works. So let me tell you, the demand deposits are, when we talk about the demand deposit, it provides the certificate of deposits. The certificate of deposits are that thing which provides you interest rate. When you talk about not a high interest rate but a lower interest rate with regarding to the FD, when we compare the fixed deposit with the demand deposit, it always have a demand deposit always have a lower interest rate with regarding to it. So determine that when we talk about to provide a stability, and when we talk about the daily basis, it always have a low investment, it always have a low interest. And when we talk about the fixed deposit, it always have a high interest rate. बिकॉज द थिंग इज दैट हमारे यहाँ होता क्या है कि जो फिक्स डिपॉजिट जो होती है वो एक किसी समय की, भैया एक साल के पहले हम निकालने से, तो ऑब्वियस बात है जब आपका एक साल तक वो पैसा आपका अकाउंट में पड़ा है, किसी बैंक सिस्टम में पड़ा है, तो वो आपको हमेशा इंटरेस्ट रेट को हाई प्रोवाइड करवाएगा. सो दैट इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी. ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है जहां पे हम M0, M1, M2, M3, M4 जो हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं. इनस्टेबिलिटी कैसे आती है, हमारा क्राइसिस कैसे आती है, और ये सब जितना भी होता है वो RBI कंक्लूड करती है. किसके कहने पे कंक्लूड करती है? आज से 2 साल पहले की बात है, 2018 में एक सेक्शन 7 बहुत ज्यादा न्यूज में था. सेक्शन 7 ये कहता है कि सेंट्रल बैंक RBI में कभी भी इंटरफेयर कर सकता है विद रिगार्डिंग टू गवर्नर. जब वो गवर्नर को डिस्कशन करने के साथ वो कह दे कि भैया हमको इतना पैसा उस चीज में चाहिए, आप इतना पैसा छापे, तो ये कोई इनलीगल बात नहीं, क्योंकि सेक्शन 7 कहता ही ये है कि भैया सेंट्रल बैंक है वो RBI के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं इन कामों में.
तो उस टाइम पे सेक्शन 7 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और कभी कभी सेक्शन 7 का गलत यूज़ भी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। हम ये नहीं कह सकते कि सेक्शन 7 हमेशा गलत यूज़ भी होता है और अच्छा यूज़ भी होता है उसका, बट मेनली हम देखते हैं कि जब आरबीआई का अपना एक मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम है, जब आजकल होता भी है कि जैसे आज के जो गवर्नर है, हमारे आज के जो गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो कि इकोनॉमिस्ट, उनका कोई इकोनॉमी कोई बैकग्राउंड ही नहीं रहा है, एंड हाउ इट इंट्रोड्यूसिंग अबाउट कि भैया इकोनॉमी होती क्या है उसको नहीं पता है, देन ऑल्सो ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट, सो दैट इज द इंटरफेरेंस ऑफ सेंट्रल बैंक, दैट इज इनडायरेक्ट डिफरेंस, इनडायरेक्ट इंटरफियर हो रहा है। सेंट्रल बैंक ने अपने एक बंदे को वहां बिठा दिया है और वो अपनी पॉलिसी को उसके हिसाब से चला रहा है, बट आरबीआई मस्ट फोकस और इट्स ऑन पॉलिसी, उसकी खुद की पॉलिसी होना चाहिए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है किसी इकोनॉमी या किसी पॉलिटिकल को स्टेबिलिटी रखने के लिए। सो दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, हम जितने भी बॉन्ड्स की बात करते हैं, जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं जिनकी बात करते हैं, हमारे यहाँ पे इकोनॉमी कितना ग्रो हो रहा है, वो जिनकी जब इन सब चीज़ों की बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले होता है। सो थैंक यू सो मच, and we will come to all kinds of different kinds of banks in the next video. So if you like our video, please do subscribe and share. Thank you so much.